Okay. Before going to start the class, I would request to all of you to take a paper and pen if possible. Okay. So because whatever I will teach today, that is a very important topic in your signal system, and that will also carry forwarded to your digital signal processing. So better, if possible, take a paper and pen with you. Whatever the numerical problem I will show you, you have to parallelly solve. Okay. So now today we will use or we will start convolution sum. Convolution sum. So before going to enter the topic, we have to first know about what do we mean by convolution. Suppose in previous class we have studied about little bit study about impulse response. That means whenever we are going to design any kind of system or any kind of device, first of all we will analyze whatever the response will be given if impulse signal will be provided to that system. Now, according to that impulse response, we will design the system by taking the corresponding input to get the corresponding output. So that means whatever I am getting from a particular input, that must be compared with its corresponding impulse response. ओके जैसे सपोज तुम लोग सेमिस्टर एग्जाम देते हो, ठीक है। सेमिस्टर एग्जाम देने से पहले तुम लोगों को क्या किया जाता है, 2 या 3 तुम्हारा इंटरनल एग्जाम लिया जाता है। जैसे मैट्रिकुलेशन में या +2 में क्या लेता है, बोर्ड एग्जाम से पहले एक टेस्ट एग्जाम लिया जाता है फ्रॉम द स्कूल, एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ दैट टेस्ट, ओके, योर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट विल बी रिफ्लेक्टेड। that means whatever you are getting in the test exam, approximately that value you can carry in your board exam. Okay? So that is the checking, that is the analysis of a signal from any kind of system. So convolution means whenever we are combined two signal, and one of the signal is impulse response and other signal is your input signal, then that kind of operation is known as convolution. So in case of convolution, you have two signals. First of all is your xn, that is the input signal, and another signal is h of n, that is the impulse response. So we have to combine these two to get y of n, that is output signal. Output signal. Now, question is how we can combine it. Whether we will add it or we will multiply it or we will divide it or we will surplus it or make the difference between x of n and y of h of n. So this is the type of combination. Suppose I am giving you two books, okay, two books, दो बुक दिया हूँ सिग्नल सिस्टम का, ठीक है। तो एक है तुम्हारा प्रोवाकिस, एक है तुम्हारा सिंपल रमेश बाबू। नाउ आई एम सेइंग दैट मेकिंग अ नोट दैट इज गिव द आउटपुट, ओके, बाय कंबाइनिंग बोथ द बुक्स। तो तुम लोग क्या करोगे, हो सकता है कन्वोल्यूशन सम एक बार तुम रमेश बाबू से लिखो और एक बार तुम प्रोवाकिस से लिखो, और ये भी हो सकता है कि रमेश बाबू का जो कन्वोल्यूशन सम का डेफिनेशन है और तुम्हारा पोआकिस में जो कन्वोल्यूशन का डेफिनेशन है, दोनों को कंबाइन करके समराइज्ड व्यू निकालो। ओके, व्हाट वुड बी द बेटर ऑप्शन, फर्स्ट वन और सेकंड वन? अगर मैं तुमको दो बुक दे दूं, एक प्रोआकिस का दे दूं और एक रमेश बाबू का दे दूं, तो नाउ आई एम सेइंग डिफाइन द कन्वोल्यूशन सम बाय combining the definition from the both books, then what will be the better option, whether you have to write both the definition from both the books or you have to write the summarized definition from both the books, कौन सा बेटर रहेगा? सर दोनों को समराइज कर क्या हुआ? समराइज क्या करके, बिकॉज एक बात है रिपीटेशन नहीं होगा,
हाँ, रिपीटेशन नहीं होगा। सो रिपीटेशन नहीं होगा, और दूसरा बात है दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, अनवांटेड जो मैसेज है, अनवांटेड जो वर्ड्स है, वो दोनों से हम लोग काट छाट के एक तुम्हारा कॉम्पैक्ट डेफिनेशन बनाएंगे, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स। सो कन्वोल्यूशन भी सेम तरह का है, इनपुट सिग्नल अलग है, इम्पल्स रेस्पॉन्स अलग है। नाउ वी हैव टू कंबाइन इन सच अ वे दैट both the signals properties of both the signals will be present in that output signal, and repetition of same kind of signal will be avoided. So this is known as convolution. And we are saying convolution sum, that means combined, हम लोग दो सिग्नल को कंबाइन कर रहे हैं, that's why it is known as convolution sum. ठीक है, and the convolution sum is denoted by asterisk. This signal is the convolution symbol, and it is expressed as, suppose your x of n is input signal and this is a system, okay, where impulse response is given by h of n, then your y of n, that is output, will be given x of n asterisk h of n. That is, this symbol is the convolution symbol. That is very much important in your signal and system as well as DSP, digital signal processing. तुम लोगों का हायर सेमिस्टर में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, वहां पे भी कन्वोल्यूशन रहेगा। सो इस प्रोसेस को ध्यान से देखना, ठीक है। कहीं पे भी अगर डाउट है, काइंडली इन्फॉर्म मी, ठीक है, आई विल रिपीट दैट स्टेप। बट डाउट है, ठीक है, कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, ये मत करना, ठीक है। नेक्स्ट इज, मुझे अब क्या क्या करना होगा, हाउ टू कन्वर्ल द सिस्टम, और हाउ टू कन्वर्ल द सिग्नल्स इन द सिस्टम। सो इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, एंड इफ यू विल फॉलो दैट स्टेप, योर कन्वोल्यूशन सम विल बी मच मोर इजियर। दैट इज स्टेप फॉर convolution sum. Okay, so first step is, in question x of n and h of n is given, we have to write this, whatever x of n and h of n is given, you have to write this. Next one is x of n and h of n को हम x of k and h of k में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। जैसे सपोज तुम लोगों को हम नोट्स देते हैं, ठीक है, तो क्या करते हो, उसका रेप्लिका बनाते हो। कोई जेरोक्स करता है, ठीक है, जो उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, ओवर स्मार्टनेस दिखाता है, उसको माइक्रो जेरोक्स करता है। दैट इज द रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल नोट, ठीक है। तो ओरिजिनल नोट को हम छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, बुक का जो मटेरियल है उसको बुक में ही रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जेरोक्स करते हैं, और उसी में क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। उसी में क्या करते हैं, अगर कुछ नोट ऐड होता है तो वो जेरोक्स कॉपी में ही ऐड करते हैं। सो वी हैव टू मेक द रेप्लिका ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n बाय x ऑफ k एंड h ऑफ k। नेक्स्ट वन इज, थर्ड ऑप्शन इज, h ऑफ k को हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड h ऑफ k, एंड फोल्ड करके उसको मिलता है h ऑफ माइनस k। दैट मीन्स अगर h ऑफ k का वैल्यू इस साइड में रहा और ये ओरिजिन रहा, तो ओरिजिन को सेंटर पकड़ के इसको घुमा देते हैं, दैट इज दिस मच, ठीक है, यही ओरिजिन रहा। सो ये है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, we have to find the range of convolution, के convolution का रेंज कहां तक होगा, ठीक है। अगर सपोज x ऑफ k स्टार्ट होता है तुम्हारा n से, और आई कैन से
x ऑफ n स्टार्टेड वैल्यू इज, दैट मीन्स ये जो ओरिजिन वैल्यू है, ये नहीं, जहां से स्टार्ट हो रहा है, सपोज x ऑफ n का वैल्यू दिया गया है दिस मच, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, -1 से, सो x ऑफ n स्टार्ट्स at n1. Similarly, h of n starts at n2. Now, our finding is we have to find convolution, that is y of n. ये कहां से starts होगा? It will starts at n1 plus n2. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर x ऑफ n का स्टार्टिंग पोजीशन -1 रहा और h ऑफ n का स्टार्टिंग पोजीशन -2 रहा, तो y ऑफ n दैट इज कन्वोल्यूशन सम का स्टार्टिंग पोजीशन कहां रहेगा, -1 प्लस -2, दैट मीन्स -3। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ स्टेप इज इफ x ऑफ n ends at n3 and h of n ends at n4, then y of n ends at, क्या होगा, सेम थिंग n3 प्लस n4, दैट मीन्स x ऑफ n अगर तुम्हारा 5 में खत्म हो रहा है, फिफ्थ पोजीशन, और h ऑफ n अगर तुम्हारा 2 सेकेंड पोजीशन में खत्म हो रहा है, देन y ऑफ n विल बी एंडेड एट 5 प्लस 2, दैट इज पोजीशन 7। दैट मीन्स अगर x ऑफ n -1 से लेके 5 तक फैला हुआ है, h ऑफ n -2 से 2 तक फैला हुआ है, देन y ऑफ n का रेंज कहाँ होगा, -3 to 7, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज of convolution sum from -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 7। ठीक है, सो ऑलवेज keep in mind that convolution is a very long process in exam, if you are going to attend the convolution sum or convolution related problem, keep in mind that you have to first cool down your mind, then स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर एक भी प्रॉब्लम के स्टेप में तुम लोग का गलती हो गया, दैट विल इफेक्ट द रिजल्ट, एंड वन मिस्टेक विल कैन कॉज 0 मार्क्स इन योर एंटायर वर्क डन। जितना भी मेहनत किए हो सब में पानी फिर जाएगा अगर तुम एक भी स्टेप गलती कर दियो। तो ठंडे दिमाग से एग्जाम में इसको सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स्थ step, that is the last step। last step क्या है, we have to use the formula, that is y of n summation k equal to -infinity to +infinity x of k h of n minus k, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, एक्चुअल कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, और तुम्हारे बुक में स्टेप 1 2 3 में ही खत्म कर देगा। ठीक है, इतना स्टेप देगा नहीं, बट यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। ठीक है, कहीं भी कॉन्वोल्यूशन सम में बुक में अगर देखोगे, तुम लोग रमेश बाबू का बुक फॉलो कर रहे हो, तो ये एंडिंग पोजीशन तुम लोगों को नहीं देगा। एंडिंग पोजीशन बुक में ऑटोमेटिकली किया हुआ है, दैट इज स्टेप जंप किया हुआ है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय सीइंग द सोल्यूशन फ्रॉम द बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, यू मे कंफ्यूज। ठीक है, सो से 6 स्टेप से ये 6 स्टेप्स को हमको फॉलो करना है to make the convolution sum of two signals, that is one is input signal, another is impulse response signal। ठीक है, और impulse response। so ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। नाउ हम लोग इसको मैथमेटिकल एप्लीकेशन के जरिए देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू ब्लू ले लेते हैं,
ब्लू कलर, ठीक है। सो नाउ गोइंग फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। दैट मीन यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन द convolution sum of two sequences, that is x of n equal to 3 2 1 2, that is in the question, and h of n 1 2 1 2, that is the question, ठीक है। now you have to find out the convolution sum। so now देखते हैं एक बार। so now solution। तो देखो यहां पे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, वी हैव टू राइट द इक्वेशन एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड h of n इक्वल टू 1 2 1 2, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2। x of n will be replaced by x of k, h of n replaced by h of k, so x of k equal to 3 2 1 2 as well as h of k equal to 1 2 1 2। ये मैंने रेप्लिका बना लिया, ठीक है। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3, we have to fold h of k, fold h of k, so it will becomes h of minus k। so देखो h of minus k का वैल्यू क्या होगा, ये दो को पकड़ के इसको घुमा दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तुम्हारे पॉइंट में। 2 का राइट हैंड साइड में जो आएगा दे विल बिकम लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ रहेगा दे विल गो टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, और तो ये हो गया मेरा सिग्नल h ऑफ माइनस के। यहां तक अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम को ही 2-3 बार लिखना है, ठीक है। नथिंग वरी अबाउट दिस। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, दैट इज एंडिंग एंड स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द कन्वोल्यूशन सम, ठीक है। सो दैट इज स्टार्टिंग पोजिशन। सो देखो x ऑफ n कहां पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 0 पे, दैट मींस n1 स्टार्ट इक्वल टू 0, दैट इज पोजीशन 0, एंड n2 h ऑफ n कहां से स्टार्ट हो रहा है, -1 से, सो ये -1 रहेगा। सो स्टार्टिंग पोजीशन दैट मींस लेट इट बी ns, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन तुम्हारा हो गया n1 प्लस n2, दैट मींस 0 प्लस -1, that will give you -1, so -1 से स्टार्ट होगा। स्टेप 5 एंडिंग पोजीशन। सो n x ऑफ n कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो 3 में पोजीशन, और h ऑफ n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो एंडिंग पोजीशन दैट इज ne, लेट इट बी। So n3 plus n4 that is 3 plus 2 that is फिफ्थ पोजीशन में एंड होगा। दैट मीन्स y ऑफ n या मेरा आउटपुट जो भी रहेगा उसका रेंज कहां से कहां तक रहेगा, ये अगर मैं y ऑफ n को रिप्लेस कर रहा हूं तो यहाँ पे सपोज 0 है, तो स्टार्टिंग पोजीशन कहां से रहेगा, -1, दैट इज -1 से लेके तुम्हारा 1 2 3 4 5। सो मेरा जितना भी सिग्नल रहेगा, वॉट एवर रिजल्टेंट विल लाई इन बिटवीन दिस रेंज,
इस रेंज के ऊपर वो मेरा आउटपुट कैरी होगा, मतलब आउटपुट का वैल्यू विल फ्रॉम -1 to 5। ठीक है, सो नाउ मूव टू द फाइनल स्टेप, और ये फाइनल स्टेप सबसे लॉन्ग स्टेप है। ठीक है, दैट इज स्टेप 6। Step 6, that is now we have to apply the formula, that is x of k h of n minus k। now ये कैसे करना है, ठीक है। सो देखो, n का वैल्यू y ऑफ n में n का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है -1 से, ठीक है, शुरू हो रहा है 5 से। सो n का वैल्यू, हर एक वैल्यू के लिए हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। n का हर एक वैल्यू के लिए मुझे y ऑफ n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कितना बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स कैलकुलेशन, 7 टाइम्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं, विच इज द मेन पार्ट। सो कैलकुलेशन, एन का वैल्यू पहले से कहाँ है, फॉर एन इक्वल टू -1। देखो एन इक्वल टू -1 होगा तो क्या होगा, एक्स ऑफ के, एन इंडिपेंडेंट है, सो ये अनचेंज हो जाएगा। एच ऑफ एन माइनस के, फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला में देखो एन के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा एच ऑफ के का वैल्यू चेंज होगा। सो इम्पल्स का वैल्यू चेंज होगा तो इट विल बिकम दिस। सो ये अगर ये हो गया, एन माइनस के हो गया, एंड एन का वैल्यू अगर -1 है, सो एच ऑफ -1 माइनस के। सो मेरे पास एच ऑफ माइनस के है, ऑलरेडी मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। सो एच ऑफ माइनस के -1 कह सकते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, यस और नो, यस और नो। कैन आई से दिस, h of -1 माइनस के इक्वल टू h of माइनस के -1। यस और नो। क्या हुआ, कह सकते हैं, ओके। सो ना देखो, इक्वेशन को गौर से देखो, h ऑफ माइनस के मेरे पास है, उसी के साथ -1 हुआ है, दैट मीन्स कोई भी सीक्वेंस के साथ अगर माइनस क्वांटिटी हुआ है, दैट इज -a, दैट मीन्स वो जो सिग्नल है डिले हो जाएगा फ्रॉम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सिग्नल। सो डिले हो जाएगा। अगर h ऑफ माइनस के मेरा कितना आएगा, 2 1 2 ये था, ठीक है। नाउ -1 डिले हो गया, -1, दैट मीन्स इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। सो ये कर्सर जो है 1 के नीचे आ जाएगा। सो h ऑफ माइनस के -1 मेरा कहां हो जाएगा, 2 1 2 1, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, शिफ्ट हो गया, ठीक है, डिले हो गया, ठीक है। सो नाउ मेरा ये मिल गया मुझे। नाउ फॉर्मूला में अप्लाई करो, y ऑफ -1 इक्वल टू समेशन k इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, दैट इज k, हाँ, नॉट n, k इक्वल टू -इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ -1 माइनस के, इसको हम जैसे लिखना है वैसे ही लिखेंगे, n-k के फॉर्म में, ठीक है। सो नाउ देखो, x ऑफ k का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज 3 2 1 2 मल्टीप्लाइड विथ समेशन एक है यहाँ पे
मल्टीप्लाइड विथ एच ऑफ -1 माइनस के, ये वैल्यू दैट इज 2 1 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एंटायर multiplication. Now signal multiplication already I have done or you have done in your previous classes. So signal multiplication कैसा होता है? Position wise multiplication. So इसमें 3 है जीरो का वैल्यू, तो देखो इन दोनों में सिर्फ जीरो कॉमन है, जीरो पोजीशन, बाकी इसमें जीरो का राइट हैंड साइड दैट मींस पॉजिटिव एक्सिस में है, और इसमें जीरो n इक्वल टू जीरो का लेफ्ट हैंड एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये नेगेटिव एक्सिस में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पोजीशन वाइज। सो ओनली दिस पोजीशन वाइज मल्टीप्लीकेशन विल बी डन, दैट इज 3 into 1, 3 into 1 दैट इज 3। तो पहला हो गया y ऑफ -1 का वैल्यू हो गया 3। नेक्स्ट n इक्वल टू 0, ठीक है, तो n इक्वल टू 0 मतलब y ऑफ 0 निकालेंगे हम। सो y ऑफ 0 जैसे ही निकालेंगे मेरा x ऑफ k इंडिपेंडेंट, तो वो सेम रहेगा h ऑफ n माइनस k, दैट मींस h ऑफ 0 माइनस k, दैट मींस h ऑफ माइनस k, और h ऑफ माइनस k का वैल्यू मेरे पास है दैट इज नथिंग बट योर 2 1 2 1 and started from the position 0 that is 2, पोजीशन 0 में वैल्यू है 2। नाउ इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन सिंपल फॉर्मूला में डालेंगे, दैट इज y ऑफ 0 इक्वल टू k माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ n minus k, that is 0 minus k h of minus k. So it will gives you the result, that is x का वैल्यू, x of k का वैल्यू क्या है? 3 2 1 2 started from 3 multiplied with 2 1 2 1 that is and इसका summation, that is position wise multiplication then add. So यहाँ पे देखो 0 में ये है तो 0 में ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, सम। सो 3 into 2 6 कॉमा पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस सिर्फ ये है तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, एंड बाकी यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड का कोई सवाल ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज 0। सो 6 और 2 दो क्वांटिटी मिला, इन दोनों का समेशन होगा 8। ठीक है, सो y ऑफ 0 इक्वल टू 8। नाउ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, सो y ऑफ 1 मुझे निकालना है, y ऑफ 1 निकालना है, सो x ऑफ k का वैल्यू अनअल्टर्ड रहेगा, h ऑफ n माइनस k, दैट मींस 1 माइनस k हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस k प्लस 1। यस और नो? yes or no? यस सर। okay, so now h of k का वैल्यू कितना था? सो प्लस 1 जैसे ही होगा, प्लस कुछ क्वांटिटी अगर ऐड होगा दैट इज प्लस है, तो क्या होगा? एडवांस हो जाएगा, मतलब कर्सर विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। सो यहाँ पे मेरा h ऑफ k का वैल्यू क्या था? 2 1 2 1 एंड स्टार्ट हो रहा था यहां से h ऑफ माइनस के, सो प्लस 1 हो जाएगा, तो कर्सर विल मूव टुवर्ड्स दिस, सो 2 1 2 1 हो जाएगा एंड 1 इज द 0th पोजीशन। सो नाउ put the formula, you will get the answer, that is summation k equal to minus infinity to plus infinity x of k h of n का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस के लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ समेशन x का वैल्यू, x ऑफ k का वैल्यू क्या है? दैट इज 3 2 1 2 स्टार्टेड फ्रॉम 3 ब्रैकेट, एक ही टाइप का ब्रैकेट देना, ठीक। सो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 2 1 2 1 स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो देखो यहाँ पे क्या होगा?
जीरोथ पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, 2 मल्टीप्लाइड होगा एक, 1 पोजीशन विल मल्टीप्लाई विद 1 पोजीशन, तो 2 क्रॉस 2 दैट इज 4। फिर ये 1 है, यहाँ पे भी 1 आएगा, दैट इज n इक्वल टू 2 में, सो 2 में 1 क्रॉस 1 दैट इज 1। फिर यहाँ पे देखो 2 है बट यहाँ पे और कोई पोजीशन नहीं है, तो जीरो हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड जीरो, तो कितना होगा 4 3 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ योर टास्क, तुम लोगों का कुछ टास्क है, देता हूं इसी क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर रहा हूं आगे। योर असाइनमेंट is to find out y of 2, y of 3, y of 4 and last position y of 5। यहां तक तुम लोग निकालना हो जाएगा। कैन आई Yes, sir. एक्सपेक्ट? ओके ओके ओके। सो नाउ देखो, यहां पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि देखो कॉन्वोल्यूशन जो है ये बहुत ही बड़ा एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन है। ठीक है, ये कैलकुलेशन मुझे करने में लगभग एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने में 10 मिनट्स मेरा आराम से लग जा रहा है, हो सकता है 15 मिनट भी लगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो क्या होगा अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा तो? ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम लोगों का मेन जो टारगेट है आफ्टर बीटेक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गिव गेट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल सिट इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू योर ब्रांच पेपर। ठीक है, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, डिफरेंट आईएएस तारপর जेपीएससी यूपीएससी व्हाटएवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज। सो तुम लोगों का मेन टारगेट क्या है, 15 मिनट लगेगा एक कन्वोल्यूशन पे, तो इसका एक सोल्यूशन भी है, that is alternate method, that is alternate method of calculation of convolution sum। ये alternate मेथड बहुत ही यूजफुल है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके अंदर दो मेथड है, एक है टेबुलर मेथड, दूसरा है मैट्रिक्स मेथड, and my personal suggestion is always use the matrix method in competitive exam, competitive exam plus MCQs। MCQs में तुम लोग मैट्रिक्स मेथड यूज करो। टेबुलर मेथड मार्क्स obtained more than 2 but less than 3, दैट मीन्स 2 से अगर ज्यादा है, दैट इज किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स है, ठीक है, यू कैन यूज टेबुलर मेथड, तब मैट्रिक्स मेथड यूज मत करना। और इसको कहते हैं, एक ही बार में लिख देते हैं, ऑब्टेंड लेस देन 4, 4 से कम अगर मार्क्स है एलोटेड है तो टेबुलर मेथड यूज करो, यू विल गेट द मार्क्स। मैट्रिक्स मेथड नेवर यूज व्हेनेवर द मार्क्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक नंबर दैट इज एमसीक्यूज और कंपिटिटिव एग्जाम, क्योंकि कंपिटिटिव एग्जाम और एमसीक्यू में तुम्हारा प्रोसेस नहीं देखा जाता है। ठीक है, कहीं पे भी अगर तुम्हारा प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चन रहा कि कैसे कॉन्वोल्यूशन सम निकालेंगे, उस टाइम में तुम टेबुलर मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड अगर यूज करोगे तो मैट्रिक्स मेथड तुम्हारा वैलिड नहीं है, दिस इज द इनवैलिड मेथड, बट वी विल यूज इट टू वेरीफाई कि मेरा जो क्वेश्चन में निकला हूं इतना लंबा एक प्रोसेस है, आराम से 2 पन्ना 2.5 पन्ना लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम में नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन अगर निकालेंगे तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स मेथड, विद इन 2 मिनट्स और 1 मिनट मैट्रिक्स मेथड विल बी सॉल्व। सो बिफोर दैट वी विल गो फॉर टेबुलर मेथड। ठीक है, टेबुलर मेथड देखते हैं क्या होता है। सेम क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 यूजिंग tabular method, tabular method
find the convolution sum of the sequences given below। सीक्वेंसेस क्या है, सेम सीक्वेंस ले रहे हैं ताकि मेरा रिलेट करने में आसानी हो। दैट इज x of n equal to 3 2 1 2 started from 3, h of n equal to 1 2 1 2 that is started from 2। ठीक है, नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे टेबुलर मेथड में। ठीक है, सो पहले इसका सॉल्यूशन, इसका पहला स्टेप है स्टार्टिंग पोजीशन ले लो, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ y ऑफ n क्या होगा, 0 माइनस माइनस 1, सॉरी 0 प्लस माइनस 1, सो दैट इज -1। ठीक है, नाउ मेक द टेबल। टेबल के एक साइड में रहेगा k, ठीक है, नीचे रहेगा x ऑफ k, और उसके बाद मेरा रहेगा n का वैल्यूज। n इक्वल टू -1 से स्टार्ट हो रहा है, -1, n इक्वल टू -0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5। ठीक है, n के रेस्पेक्ट में h का वैल्यू भी आ जाएगा, दैट इज -1 माइनस के। ठीक है, पहले एक काम करो, यहाँ पे h ऑफ k का वैल्यू यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, तुम लोगों का आसानी रहेगा। ठीक है, एक है h ऑफ माइनस के, h ऑफ k, x ऑफ k एंड k। ठीक है, ये ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, h ऑफ -1 माइनस के दैट इज h ऑफ n माइनस के पुट करना है, दैट इज 1 माइनस के, h ऑफ 2 माइनस के, h ऑफ 3 माइनस के, h ऑफ 4 माइनस के एंड h ऑफ 5 माइनस के। तुम यहाँ पे एंडिंग पोजीशन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी आसानी रहेगा। एंडिंग पोजीशन ऑफ y of n that is 5, that is 1 2 3 1 2 3 plus 2 5। ओके, सो देखो अब क्या करना पड़ेगा, मेरा नेक्स्ट काम क्या है, आई हैव टू स्टार्ट द इक्वेशन। ठीक है, सो 0 जो है बीच से नहीं लिखो, 0 k का वैल्यू 0। ठीक है, ये बीच से लिखो ताकि तुम्हें माइनस एक्सिस का भी माइनस एक्सिस का जितना भी वैल्यू है वो तुम्हें यहां से मिल जाएगा दो साइड में। ठीक है, सो ये हो गया 0। नाउ नेक्स्ट इज 5 तक ले लो, यहां मिनिमम 5 तक ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 से ज्यादा भी लिख सकते हो, 7 6, हम 7 तक ले जाए ताकि हर एक सीक्वेंस कवर हो जाए। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे कुछ पोजीशन ले लो, ये नहीं मैंडेटरी नहीं है कितना लोगे। ठीक है, एक आर्बिट्ररी के -1 से स्टार्ट हो रहा तो -1 से
ज्यादा लो। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड में कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, कॉपी में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लाइन खींचने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो देखो या ये वो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 अगर हुआ तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ तक आया तो वहां तक ले लो। नाउ एक्स ऑफ के का वैल्यू निकालो, 0 में 3 2 1 2 है। एच ऑफ के का वैल्यू क्या है? 1 2 1 2। एच ऑफ माइनस के का वैल्यू कितना आएगा? 2 को यहां रखो, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। सो नाउ मेरा मेन जो काम है ये वाला पोर्शन मेरा काम नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरा काम नहीं आएगा, तो डोंट कंसीडर दिस। ठीक है, ये तुम लोगों का कैलकुलेशन के लिए आसानी होगा, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखें। नाउ मेरा मेन काम है इस पोर्शन और ये पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस। ठीक है, सो नाउ पहला सीक्वेंस में आते हैं। एच ऑफ -1 माइनस के, दैट इज माइनस के, दैट मीन्स माइनस के, ये वाला पोर्शन माइनस के। ठीक है, -1 डिले हो जाएगा, दैट मीन्स 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 1 2। ठीक है, नाउ एच ऑफ, सॉरी इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, ये वाला लाइन पे, दैट इज ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 1 2। नाउ अब कैलकुलेशन के लिए ये पहला स्टेप हो गया, तो अब इसको भी मिटा दो, ये भी तुम्हारा काम नहीं आएगा। सो ये दो पोर्शन तुम्हारा काम नहीं आएगा। ठीक है, नाउ वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पोर्शन एंड ये जितना भी आ रहा है पोर्शन, ये पोर्शन के साथ मैं काम करूंगा। ठीक है, अदर पोर्शन विल बी omitted। व्हाइट किधर गया? नाउ एच ऑफ माइनस के, सो ये -1, सो माइनस के, ऑलरेडी माइनस के इज टेकन, सो 2 1 2 1, तो एक एक करके शिफ्ट कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो -1 दैट मीन्स प्लस, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 2 1 2 1 1 1 1 1 अप टू 6। ठीक है, ये भी शिफ्ट कर दो, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2। नाउ क्या करना है? अब मेरा कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन पार्ट। देखो पहला में, नाउ y ऑफ n डायरेक्ट लिख दो। पहला में क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड विथ दिस पोजीशन, ये पोजीशन मल्टीप्लाइड विथ दिस पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन वाइज मल्टीप्लीकेशन, तो 3 के यहाँ पे 1 है, बाकी सब में कुछ वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगा। सो इधर भी सेम थिंग, इधर कुछ वैल्यू नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। सो 3 इंटू 1 दैट इज 3, कॉमा। नाउ कंसीडर दिस, इसको कंसीडर करो, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2, 6 प्लस 2 8। नेक्स्ट इसको कंसीडर करो, so 3 into 1, 3 plus 2 into 2, that is 4. 3 plus 4, 7. Sorry, 3, 7, and 1 plus 1, 1, that is 7 plus 1, that is 8.
नाउ इसको कंसीडर करो, इसमें देखो 3 × 2 6 क्रॉस प्लस 2 दैट इज 6 + 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 दैट इज 12। ठीक है, नेक्स्ट इसको कंसीडर करो, कंसीडर दिस दैट इज 2 × 2 4 1 × 1 1 4 + 1 5 5 प्लस 2 × 2 4 दैट इज 5 + 4 9। फिर इसको कंसीडर करो, ठीक है, दैट इज 2 × 1 2 प्लस 2 × 1 दैट इज 2 2 + 2 4 दैट इज 4 एंड लास्टली दिस वन। तो यहाँ पे देखो सिर्फ इसी पोजीशन में x ऑफ n का वैल्यू है दैट इज 2 × 2 4 एंड इट विल स्टार्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन इज -1 सो -1 ये है तो ये 0 में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा विद इन 5 मिनट्स। तुम्हारा टेबल बनाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही, बाकी तुम्हारा कैलकुलेशन पूरा पूरी इजीली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस इतना भी टाइम हम नहीं देंगे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 10 मिनट्स इज एनफ, 10 to 5 minutes is enough। ठीक है, मैक्सिमम each and every question on an average will take तुम्हारा और must take 2 to 3 minutes। ठीक है, अगर कम लगता है तो दैट इज योर प्लस पॉइंट, बट 2 से 3 मिनट से ज्यादा हम लोग देंगे नहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट देंगे नहीं। अगर देखते हैं 2 से 3 मिनट लगता है, स्किप दैट, बाद में अगर टाइम मिलता है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मेथड ऑल्टरनेट मेथड नंबर 2 यूज करना पड़ेगा दैट इज मैट्रिक्स मेथड। और ये मैं हमेशा कह रहा हूं, ये तुम कभी भी यूज मत करना ट्रेडिशनल तुम्हारे जहां पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू कैन डू दिस। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड में मेरा x ऑफ n है, कितना है 3 2 1 2 3 2 1 2, y ऑफ n सॉरी h ऑफ n रहेगा 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 1 2। तो ये सबसे आसान है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिंपली मुझे मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं। सो देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट लगा लूंगा। ठीक है, ऊपर का एक्सिस क्या रहेगा, x ऑफ n को डिनोट करेगा, y एक्सिस किसको डिनोट करेगा, h ऑफ n को डिनोट करेगा। ठीक है, सो x का वैल्यू पुट कर देते हैं 3 2 1 2, सिंपल। h ऑफ n को भी पुट कर देते हैं 1 2 1 2, सिंपल। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करो कॉर्नर वाइज दैट इज 3 क्रॉस 1 3 1 क्रॉस 2 2 1 2 दैट इज 1 को ईच एंड एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो आता है 3 2 1 2, 2 को भी सेम थिंग करो 6 4 2 4 1 3 2 1 2, अगेन 2 है सो 6 4 2 4, ये हो गया मेरा कैलकुलेशन। नाउ डायगोनली कनेक्ट कर दो, ये 3 6 2 3 4 1 6 2 3 2 6 2 2 2, नाउ डायगोनल जो जो कनेक्ट किया है उस एलिमेंट को ऐड कर दो। शुरू में 3 अकेला है, फिर 6 के साथ 2 है 8 है, फिर 3 4 1 टोटल है तुम्हारा 8, फिर 6 2 2 2 दैट इज 12, उसके बाद है 4 1 4 दैट इज 9, फिर 2 2 दैट इज 4 4। स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग तुम एज पर 0 -1 से आ जाएगा सो 8। तो देखो कितना टाइम लगा, 2 मिनट भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो ऑलवेज यूज दिस मेथड इन योर कंपेरेटिव एग्जाम, बट रिमेंबर कीप इन माइंड वेरी स्ट्रिक्टली कि ये मेथड को हम कभी भी, ठीक है, सब्जेक्ट और ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में कभी भी यूज नहीं करेंगे।
मैट्रिक्स मेथड, बिकॉज ये मेथड लीगल नहीं है, ठीक है, ये कंपेटिटिव पर्पस में बनाया गया है। हो सकता है बुक में तुम्हें ये मिले, बट डोंट यूज दिस अनटिल एंड अनलेस एमसीक्यू और कंपेटिटिव एग्जाम, और एक हो सकता है अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो तो, अदरवाइज डोंट यूज दिस मेथड। ओके, सो दैट मच फॉर टुडे, ठीक है। तो तुम लोगों का कोई डाउट रिगार्डिंग दिस कन्वोल्यूशन, रिगार्डिंग कन्वोल्यूशन, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, और तुम लोगों को मैं रुको, पहले रिकॉर्ड ऑफ